Today we'll go for exercise 1.4. Okay. If you refer the textbook here, ये textbook है, page number is 21. Page number 21, and we'll be doing this exercise 1.4. So let me start with this exercise now. Exercise 1.4. ये रहा. In the previous lecture we have talked about various laws. अगर आपको याद होगा तो कल का जो लेक्चर था उसमें हमने ये सारी बातें करी थी. We have talked about these laws. These are very important laws. Idempotent law. We are going to make use of these laws to prove certain things here. देखते हैं. Let's begin. इसमें से मैं क्या क्या सॉल्व करूंगा मैं आपको बता दूं. I'll be solving 4 questions here. कौन से? 5, 6, 7 and 8. 1, 2, 3, 4 is a homework for you all. 5, 6, 7, 8. ठीक है. क्या है ये क्वेश्चंस देखते हैं. लेट्स बिगिन नाउ. The question says, without using the rules of negation, we have to make use of the rules of negation to prove this. Negation के rules. So I'll be solving 5, 6 और ये तुम्हारे homework है. चलिए शुरू करते हैं. Question number 1 sub part 5. It is P implies P or negation Q. I have to write down the negation of this statement. इसका negation मुझे लिखना है. Negation of this by making the rules of negation. Now मुझे आप बताइए, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ. I'll write the formula here. What is negation of P implies Q? The negation of P implies Q is P and negation Q. सही है कि नहीं है? हेलो, सही है? तो अप्लाई दिस एंड आंसर दिस. ये है P और दिस ब्रैकेट इज प्लेइंग द रोल ऑफ Q. हाँ तो बताइए. P will be as it is P and negation of this bracket P or negation Q. Yes or no? Now it's time to send this inside. ये अंदर भेजना पड़ेगा और इसे कहते हैं हम डी मॉर्गन्स लॉ. व्हाट इज दैट लॉ? डी मॉर्गन्स लॉ. क्या है डी मॉर्गन्स लॉ? I'll simply say here De Morgan's law. What is De Morgan's law for OR statement? What is negation of P or Q? मत देखिए, डायरेक्ट बताइए. This is negation P, OR का बनेगा and negation Q. You understand that? So let's apply this for this step. ये क्या बन जाएगा? This will become, yes, P and you send this inside. This will become negation P and negation of negation is simply Q, and that's the answer. Is this okay? And that's the answer. Is this okay? This is the negation of the given statement. Any doubts about that? Any doubts about that? Is this okay? Is that clear? Okay. Proceed now. Can you see the screen? Hello? Can you see the screen? Hello? चलिए आगे बढ़ते हैं. Yes, sir. Question number 1 subpart 6. I want to write down the negation of this part now. Let me write down the statement first of all. This is negation of P and Q or P or negation Q. मुझे इसका negation लिखना है तो मैं ब्रैकेट के बाहर negation लिख लेता हूँ. Can you give me the guidelines about this? अब ये और वाला स्टेटमेंट है, मुझे डिमॉर्गन्स लॉ सेम वाला जो लॉ है वो यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा. ओनली द डिफरेंस इज दैट यहाँ पे जो ब्रैकेट है, पहला ब्रैकेट जो है इट्स प्लेइंग द रोल ऑफ P और ये है रोल ऑफ Q प्ले कर रहा है. इजंट इट? सो आई जस्ट राइट डाउन दिस डिमॉर्गन्स लॉ और डिमॉर्गन्स लॉ को यूज करके मुझे यहाँ पर लिखना है. नाउ व्हेन दिस विल गो इनसाइड negation of negation, that means normally stating that there will be P and Q. और का बनेगा and.
and this negation applies for the second bracket. Yes or no? Yes or no? Okay. अब now I have to apply this negation inside. I have to apply this negation inside. कैसे करेंगे बताइए? Yes. Once again ये P और Q के लिए मुझे ये अंदर चला जाएगा तो same De Morgan's law. तो I'll apply the same formula there. Again De Morgan's law. Yes or no? So for every step I have to write down the justification here. ये same justification है इसके लिए I'll just say here ditto or do. Is this okay? But then this will become P and Q. बताइए. And this will go inside. This will become negation P and Q. Is that clear? That's all. Hello? I can't hear your answer reply. Is that fine? Is that understood? अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Let's go for the next question now. अगला क्वेश्चन है 1 sub part 7. 1 sub part 7. पढ़िए क्या दिया है यहाँ पे. P और negation Q. Yes. Implies P and negation Q. P or negation Q implies P and negation Q, and I want the negation for this. फॉर्मूला कौन सा होगा आप बताएंगे मुझे प्लीज. It is negation of P implies Q. The first bracket is playing the role of P, second bracket is playing the role of Q. And what is the negation of P implies Q? मैं आपको एक बार क्वेश्चन जब पूछता हूं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि मुझे फॉर्मूला नहीं आता, और मुझे फॉर्मूला आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है. आपको एग्जाम देना है, जब आपको पूछा जाएगा आपको उसे आंसर करना है. प्लीज आंसर. नेगेशन ऑफ P implies Q इज इक्वल टू. गलत. गलत. शुरुआत करी थी मैंने इसी से आज के लेक्चर की. नेगेशन ऑफ P implies Q इज P एंड नेगेशन Q. क्या लिखूं यहां पे मैं? P एंड नेगेशन Q. समझ में आ गया? अप्लाई करके यहां पर अब मुझे बताइएगा. आप बताओगे मैं क्या लिखूंगा. आई एम वेटिंग फॉर योर ऑल टू आंसर. मतलब द फर्स्ट ब्रैकेट. एवरीबडी आई वांट आंसर एंड आई वांट एवरीबडी आंसरिंग. negation of the second statement. In the next step this negation is going to be sent over. एक मिनट, मैंने गलत लिखा ना. यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए एंड. इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? अगला जो स्टेप है इसमें इट इज द नेगेशन. De Morgan's law. In short this is going to be De Morgan's law. And which of these two laws? There are two De Morgan's laws. उसमें से कौन सा? negation of P and Q which is equal to negation P or negation Q. You'll have to send this inside. चलिए बताइए क्या हो जाएगा. So this will become P or negation Q and negation P or Q. Is that clear? Once again I suggest you all to answer. Do not sit idle. एक बार जब आप आंसर करते हो तो आपके दिमाग से वो एक बार प्रोसेस हो जाता है. So it is always advisable to answer rather than sitting idle watching like a movie. Don't watch it like a movie. Come on, the next question is negation of P or negation Q. Negation of P or negation Q or P and negation Q. मुझे इसका नेगेशन चाहिए. चलिए बताइए. नहीं, मुझे पहले रीजन बताओ. क्या कौन सा वाला? व्हाट फॉर्मूला? तो जिसको इंग्लिश में De Morgan's law बोलते हैं. विच इज नेगेशन ऑफ. आप बताइए क्या लिखूं.
P और Q is equal to negation P and negation Q. ये लॉ मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये उसका रीजन है और आप इसको अप्लाई कीजिए अभी. तो दिस इज negation ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट, negation P और negation Q, और का बनेगा and negation ऑफ द सेकेंड ब्रैकेट P and negation Q. अब दोबारा डिमॉर्गन्स लॉ ये होगा, isn't it? एक और के लिए होगा और दूसरा and के लिए होगा. So I will simply say here De Morgan's laws. दोनों laws यहाँ पर यूज हो रहे हैं ना, De Morgan's laws, plural, and then just apply it. When this goes inside, negation of negation becomes P, और का बनेगा and negation of negation Q becomes Q, and this goes inside again. This is negation P or Q, and that's the answer. I think so. You think so? Any doubts about that? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Very interesting. The next question is, rewrite the following statements without using if then. फिर कैसे करते हैं इसको? Rewrite the following statements without using if then. How is that possible? First of all, is that possible and then how? इसमें से मैं सेकंड और थर्ड सॉल्व करूंगा. फर्स्ट वाला आपके लिए होमवर्क छोड़ दिया मैंने. I'll be solving second and third. How's that? बताइए. Now first of all, मुझे if then यूज नहीं करना है. You tell me the given statement in the symbolic form. हाँ, वो if है ये. It's a misprint. हाँ जी बोलिए. Now let me divide this compound statement into two simple statements. अब आप लोग मुझे बताइए which is the first simple statement. 2 is a rational number. I'll call this as P. And then root 2 is an irrational number. Let me call this as Q. Let me call this as Q. Okay. मैं इसे बोलूंगा Q. So the given statement is if P then Q, and P implies Q is equal to dash dash. P implies Q is equal to dash dash. Do we know this? Do we know this? Negation P. क्या बात है, negation P और Q. तो अब गिवन स्टेटमेंट मुझे यहां पर इफ देन गायब हो गया, इफ देन गायब हो गया, तो बताइए स्टेटमेंट क्या होगा इसका? टू इज नॉट अ रैशनल नंबर और, क्या बात है, वेरी गुड, देयर यू आर. टू इज नॉट अ रैशनल नंबर और root 2 is irrational number. Is this okay? चलिए ग्रेट. इसी तरह से आप अब मुझे बताओगे सेकंड वाला, थर्ड वाला कैसे करेंगे. चलिए बताइए. Tell me how do you go for the third one? Come on. Yes, please. पहले तो मुझे इसको दो सिंपल स्टेटमेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा. f of 2 is equal to 0. This is P. And what is Q? F of x is divisible by x minus 2. This is Q. So the given statement is P implies Q, and which is equal to negation P or Q. Any doubts? Is that clear to you all? So tell me the statement. Solution. Correct. F of 2 is not equal to 0 or
f of x is divisible by x minus 2. Very correct, very correct. Any doubts about that? बाकी लोगों को समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? We are doing maths. आ रहा है समझ में? Very good, very good. अच्छी बात है. Let me go for question number 3 now. नहीं, आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो, तो इसलिए मैंने बता दिया कि हम मैथ्स कर रहे हैं. I want answers. Please do not sit idle. Can you hear me? जी बताइए, चलिए. हेलो. ऑनलाइन पीपल, आप लोग भी आंसर कर सकते हो. ऑनलाइन पीपल, you can also answer online. Yeah, tell me now. चलिए. विदाउट यूजिंग द ट्रुथ टेबल के बिना इसको प्रूव करना है. ट्रुथ टेबल से तो बहुत आसान है. टी 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 एफ टी 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 एफ वगैरह वगैरह. चलिए बताइए. अब ये बताइए, कम ऑन, दिस इज इंटरेस्टिंग नाउ. विदाउट यूजिंग द ट्रुथ टेबल आई हैव टू प्रूव दिस. और कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं, वो लॉ लिखो या उसका नाम लिखो. समझे? चलिए बताइए. सो आई हैव टू गो फॉर द थर्ड वन. और इसमें से मैं सारे के सारे चारों के चारों सॉल्व करूंगा. सो आई स्टार्ट विद LHS. LHS is P double implies Q is equal to this. ये प्रूव करना है मुझे. Now P double implies Q, that is equal to P implies Q and Q implies P. भाई इसका नाम क्या लिखे? करेक्ट. क्या बोला आप लोगों ने? बाय कंडीशनल लॉ. ये देखो ना, बाय कंडीशनल लॉ है ना. तो हम इसको लिखेंगे बाय कंडीशनल लॉ. उसका नाम लिखना पड़ेगा. ठीक है. HSC में पूछ सकते हैं ये 3 मार्क के लिए, 4 मार्क के, 3 मार्क के लिए, कम से कम 3 मार्क्स. दे कैन आस्क दिस फॉर 3 मार्क्स. यस, ऐसे गुस्से से देखने से मार्क कम नहीं होंगे. 3 मार्क. अगला. अब P implies Q and Q implies P. What is P implies Q and Q implies P? नेगेशन. अब यहां पर ये P implies Q के लिए मुझे और एक लॉ है, आप बताओगे उसका नाम क्या है? करेक्ट, कंडीशनल लॉ. एब्सोल्युटली करेक्ट, कंडीशनल लॉ. आप लोग चाहिए तो वो वाला जो टेबल है वो आपके सामने रखिए. तो व्हाट इज कंडीशनल लॉ? नेगेशन P और Q एंड नेगेशन Q और P. सही है, बिल्कुल सही है. एनी डाउट्स अबाउट दैट? इज दिस क्लियर टू ऑल? समझ में आया? लेकिन जो प्रूव करना है वो तो एकदम ही अलग है, कुछ तो भलताज. बराबर है क्या? तो मैं क्या करूंगा, आई विल ओपन दिस ब्रैकेट. अब देखिए, गौर से देखिए, अब मैं क्या करने जा रहा हूं. आई विल अप्लाई दिस नेगेशन P ऑन दिस टोटल ब्रैकेट, और फिर ये Q इस टोटल ब्रैकेट के ऊपर अप्लाई करूंगा. तो जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. उसका नाम लिखना काफी है, नाम ही काफी है. तो क्या लिखेंगे बताइए? negation P is ANDed with this bracket. negation P ANDed with this bracket, समझे? और Q is ANDed with this bracket, समझे? what is that bracket? negation Q और P. negation Q और P. और इसका नाम क्या है भाई? करेक्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. नाम लिखना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. समझ में आ गई बात? नॉट ओनली दैट, मतलब चलिए ठीक है. एनी डाउट्स अबाउट दैट? प्रोसीड. अब क्या करना है? दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा मुझे. अगेन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कब होता है? कल हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जब एक एंड और एक और होता है. तो
तो यहाँ पर एक एंड है और एक और है, तो आई नीड टू डिस्ट्रीब्यूट दिस अगेन, सो विल यू हेल्प मी इन डूइंग दैट अगेन? यस प्लीज। क्या बोले आप लोग? पहला ब्रैकेट नेगेशन P एंड नेगेशन Q, और बोलिए प्लीज, नेगेशन P एंड P, और बताइए आगे Q एंड नेगेशन Q, और Q एंड P। ये समझा ना रे? नाम क्या है इस लॉ का? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एनी डाउट सो फार? ये पूरा का पूरा जो है चारों के चारों सम स्टार प्रॉब्लम्स हैं, ये इतने आसान नहीं है जितने आपको लग रहे हैं। अब कौन सा लॉ आपके दिमाग में आता है? प्लीज कीप द टेबल ओपन बिफोर यू ऑल। कौन सा लॉ आता है? देखिए इसको देख के मेरे को कुछ कोई लॉ दिख रहा है। सॉरी, डिमॉर्गन्स लॉ नहीं आता है जी। P एंड नेगेशन P, Q एंड नेगेशन Q, कंप्लीमेंट लॉ। Is there something called as complement law? What is this complement law is saying? Check here, complement law। देखो मैंने स्टार मार्क करके दिया है ना रे बाबा। complement law, P and negation P is F। क्या है वो? F। समझे? तो मैं लिख दूंगा यहां पे जी। क्या लिखेंगे? complement law। और उसमें से कौन सा? क्योंकि उसके अंदर दोनों है, P एंड नेगेशन P इज इक्वल टू F। चलिए इसको यूज कर देते हैं। अगर यूज कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो तो क्या बन जाएगा ये बताइए? दिस विल बिकम नेगेशन P एंड नेगेशन Q is ORed with F, you see, or F is ORed with Q and P। सही है? अरे समझ में आ गया हाँ या ना? कुछ तो बोल सकते हो। अच्छा, अब एक लॉ है भाई। कौन सा लॉ है? एक लॉ है और वह बोलता है P और F इज इक्वल टू P। नाम बताओ। करेक्ट, इट इज रिटेनिंग इट्स आइडेंटिटी। It is retaining its identity। Can you see this identity law? कहाँ गया identity? P or false, P or false is P, isn't it? तो उसका नाम है identity law। So I'll say this is identity law। और वो यहाँ पर और यहाँ पर अप्लाई होगा जी। करेक्ट है? identity law। समझ में आ गई बात? तो ये क्या बन जाएगा बताइए? This will become, come on tell me, this is negation of P and negation Q और Q एंड P। सही है? अब हम अपने लक्ष्य के करीब पहुंच चुके हैं। वी आर क्लोज टू RHS। अब कौन सा लॉ है जी? अब कौन सा लॉ है जी? गलत। अब कौन सा लॉ है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन यू आंसर? गलत। अरे बाबा, इसको उल्टा पुल्टा करने का है। कामुटेटिव लॉ, कामुटेटिव। देखिए P और Q को उल्टा पुल्टा कर लो, फिर ब्रैकेट को उल्टा पुल्टा कर लो। कम्यूटेटिव लॉ एक बार, कम्यूटेटिव लॉ दो बार। समझे? अरे समझे? तो पहली बार कॉम्पिटेटिव लॉ मैं यूज करूंगा काहे को? हेलो, पहली बार मैं यूज करूंगा यहाँ पे, तो वो क्या बन जाएगा? दिस इज बिकमिंग नेगेशन P एंड नेगेशन Q और P एंड Q, एंड वंस अगेन आई यूज दिस कॉम्पिटेटिव लॉ। काहे और कहां पे? वंस अगेन आई यूज द कॉम्पिटेटिव लॉ, बट दिस टाइम आई बी यूजिंग इट ओवर हियर, पूरे ब्रैकेट्स के लिए। तो ये क्या बन जाएगा बताइए? दिस विल बिकम P एंड Q और negation P and negation Q, and I think that is equal to RHS। हेलो,
इजी नहीं है। लास्ट स्टेप पहुंचने के बाद यस बोलना बहुत आसान है। हेलो बोला कि हाँ यस यस समझ में आ गया रे, तू आगे का बोल रहे हैं। क्या बार बार वही पूछ रहा है, हमको इतनी अक्ल नहीं। नहीं बाबा तुमको है, लेकिन फिर भी मैं पूछ रही हूँ। इज दिस ओके? प्रोसीड, वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं तुम बताते ही नहीं तो फिर क्या बोलूं, बहुत भाव खाते रहते हैं। डोंट इवन टॉक लाइक, अब समझ में आ गया? अरे हाँ रे कितना भाव खाते। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड। सो प्लीज आंसर व्हेन आई आस्क। अगर फॉर्मूला पूछ रहा हो तो प्लीज आंसर करिए यार, आई रिक्वेस्ट यू। चलिए अगला क्वेश्चन। ये चारों के चारों इसको मार्क करो स्टार, मार्क करो इसको स्टार। या दिस इज स्टार, दिस इज स्टार, स्टार क्रिकेटर है ये। हाँ जी बोलिए, कैसे करना है इसको अभी? कैसे करेंगे? आई स्टार्ट विद एलएचएस। चलो मैंने एक स्टेप लिखा, अब आप बताइए। P और Q, एक चीज आप देख रहे हो यहां पे, इसमें से Q गायब हो गया है। RHS में सिर्फ P है, तो कहीं ना कहीं एब्सॉर्प्शन लॉ यूज किया करना पड़ेगा, क्योंकि एब्सॉर्प्शन में वो क्या कर रहा है, इट इज एब्सॉर्बिंग वन ऑफ द थिंग्स। चलिए बताइए कैसे करेंगे। देखिए एंड और है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू इज, इस P को मैं इस पूरे ब्रैकेट पर ऑपरेट करा दूंगा और फिर इसको इस पूरे ब्रैकेट पर, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगर मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना है, तो क्या आप उसको यूज करके मुझे बता सकते हो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? यस प्लीज। करेक्ट, सही बोला आप लोगों ने। P एंड ब्रैकेट और, बोला ना, Q एंड ब्रैकेट, सही बोला आपने। व्हाट इज दिस ब्रैकेट? P और नेगेशन Q। अब अब दोबारा वही करना पड़ेगा ना, P और ब्रैकेट। एक सेकेंड, हाँ थोड़ा सा उल्टा 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 सोचिए, होल्ड ऑन, नॉट दिस, थोड़ा सा उल्टा सोचिए। कैन आई से, मुझे Q को हटाना है ना वहां से, कैन आई टेक P कॉमन हियर, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन अपोजिट सेंस। थैंक यू फॉर साइलेंस। कैन वी अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन अपोजिट सेंस? मतलब डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, अगर उसको कॉमन यू निकालते हैं तो वो भी तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन द अपोजिट डायरेक्शन यूज कर रहे हैं हम लोग। मतलब इफ आई टेक P कॉमन हियर और ब्रैकेट के अंदर Q एंड नेगेशन Q, बताइए क्या होगा? इफ आई ओपन द ब्रैकेट P और Q एंड P और नेगेशन Q, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है ये, लेकिन उल्टा, अपोजिट डायरेक्शन में। हेलो हेलो, इसको देख के मुझे कुछ याद आ रही है। P and negation P is false. Complement. This is complement law. Is that okay? So I'll write here complement law. This is P or false. ओ तेरी, ये भी मेरे को किसी की याद दिला रही है। P or false is P. Identity. Identity law. अच्छा बाय द वे, अगर आपको उसका नाम याद नहीं लगता लेकिन आप सिर्फ ये भी लिख देते हो, फुल मार्क्स फुल क्रेडिट। इज दिस ओके? सो व्हाट इज दैट? Is equal to P and that is equal to RHS. Seems to be easy.
डाउट्स? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड फर्दर। थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। अगला सवाल, हाँ जी बोलिए। एलएचएस से मैं शुरुआत करता हूं, पहला स्टेप मैं सॉल्व कर रहा हूं। एलएचएस हो गया पहला स्टेप, आप बताइए आगे। ये भी लिख लेता हूं मैं। हाँ जी, पी एंड क्यू और नेगेशन पी एंड क्यू और पी एंड नेगेशन क्यू, बहुत लिख लिया मैंने। अभी आप बताओ, चलिए। हाउ वाज दैट? क्या बोले? सही है। हमको कछु समझ में नहीं आया, आप दोबारा बताइए। हाँ, टेल मी वन सेकेंड। सुनिए मैं क्या करता हूं, सुनो ना। आई टेल यू, या आई टेल यू, होल्ड। नहीं, बाय कंडीशनल लॉ फॉर द सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। लीव द सेकेंड ब्रैकेट, लीव द फर्स्ट ब्रैकेट, एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं इन दोनों को क्लब करता हूं, क्लब। नेगेशन पी, इट इज, झूठ बोला, देखो ना, उधर यहां पे और है और यहां पे एंड है। ऊ सब्जी, ये गड़बड़ गई आपने, है ना? यहां पर और है और यहां पर एंड है। एक मिनट, एक मिनट, देखो यहाँ पे तुम जो बाय कंडीशनल लॉ बोल रहे हो, बाय कंडीशनल यहाँ पे और है, एंड है, और है, गलत है, हम सही है, बराबर है ना? प्रीवियस, अरे लेकिन उसमें निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल, लेकिन निगेशनल ऑफ बाय कंडीशनल में यहां पर पी है, फिर निगेशन पी नहीं है। हेलो, तू गड़बड़ किया ना, फिर कैसे करने का? फिर क्या करे? एक काम करते हैं, वेट, I'll club these two together, hold on please, look at it in such a way। देखिए ये दो अगर मैं क्लब करता हूं और यहां से Q को और यहां से भी Q को कॉमन निकालूं, तो अगर कॉमन निकालने वाली चीज होती है उसको डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ ही बोलते हैं ना। सो व्हाट आई से हियर, इज इट नॉट P और नेगेशन P एंडेड विथ Q? क्योंकि अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हो तो ये बनेगा P एंड Q और नेगेशन P और एंड Q, यस और नो? प्लीज टेल मी वेदर दिस स्टेप इज क्लियर टू यू। नहीं समझे? चलिए, अगर आप इसे ओपन करते हो तो क्या मिलेगा बताइए। टेल मी, इफ आई आस्क यू टू ओपन दिस थिंग, इफ आई आस्क यू टू ओपन, ये इस तरह से ओपन होगा ना? क्या ओपन होगा? दिस बिकम P एंड Q और नेगेशन P एंड Q। और इसको मैंने कहीं देखा है, यहां है कि नहीं है? सो कैन वी कॉल दिस एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का उल्टा, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज बोलने का, कॉल दिस एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यू सी। सो लेट मी कॉल दिस एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आगे बताइए। ओ या, व्हाट इज दिस?
ऐसे बोलते हैं ना, P और negation P is true, it is true. कौन सा लॉ? कॉम्प्लीमेंट लॉ. ओके, हमने यूज किया कहां पे? यहां पे क्या मिला? ट्रू एंड क्यू और P एंड नेगेशन Q. और एक बार ओ ये Q and true is equal to Q. Identity. Is it retaining its identity? आपके सामने बॉक्स है, वो बॉक्स में दिख रही है. व्हाट इज दिस? दिस इज आइडेंटिटी लॉ. अभी आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, बट यू विल स्टार्ट वंडरिंग व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग विदाउट सीइंग. अरे ये याद कैसे रखने का? एग्जैक्टली तो लर्न करने का. और पता है, ये तुमको हिंट दे रही है. मैं यहाँ पे ओ ये बोल रहा हूँ ना, ओ ये, दैट्स अ हिंट. अरे हाँ, इससे समझ में आ गया. चलिए अप्लाई कर दिया, क्या मिलेगा? व्हाट इज दिस? दिस इज क्यू और पी एंड नेगेशन क्यू. ओ ये, एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड और आ गया कॉम्बिनेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. बताओ बताओ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. हाँ जी, सही बोला. Q और P एंड Q और नेगेशन Q. ओ ये, क्योंकि मुझे P और Q चाहिए सिर्फ, और इसको खत्म करने का काम ये कर सकता है. व्हाट इज Q और नेगेशन Q? इट इज ट्रू. कंप्लीमेंट ट्रू है ना वो, कंप्लीमेंट लॉ. देखिए याद रखने का तरीका कैसा है इसका. Q का वैल्यू कुछ भी हो, अगर वो ट्रू है तो ये फॉल्स है. ट्रू और फॉल्स इज ट्रू. और अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू है. फॉल्स और ट्रू इज ऑल्सो ट्रू. यस और नो? हेलो हेलो हेलो. करेक्ट. सो अप्लाई करके बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे. दिस इज Q और P एंड ट्रू. ओ ये, P एंड ट्रू. P and true is P. Identity law. Hello. Is it not identity law? It's retaining its identity. You see? तो यहां क्या आएगा? Q और P ब्रैकेट एंड ट्रू इज ब्रैकेट. अब हमको चाहिए वह, और हमारे पास है यह. हाँ उस, अरे भैया लिख तो, लिखने को तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन किस आधार पर लिखोगे? लॉ. कम्यूटेटिव लॉ. करेक्ट. यू हैव टू गो फॉर कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ. हर एक स्टेप का आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन में. दिस इज P और Q एंड दैट इज इक्वल टू RHS. हेलो, नाइस वन. दिस वाज अंडरस्टूड. हाँ बोलने का, ऐसे पूछने के बाद. वेरी गुड. चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स प्रोसीड फर्दर. I'll go for the next question now. आप लोग बने हो अभी तक? चलिए, नहीं एकदम म्यूट मोड पे चले गए. वैसे आप भी, वैसे ऑनलाइन पीपल यू कैन ऑल्सो ट्राई टू आंसर. आप लोग भी आंसर करने की कोशिश कर सकते हो. ऑलराइट, प्रोसीड नाउ. I'm sure you are thinking about how to solve this question. I'm sure about it. Very good, very good. Good discussion, healthy discussion, brainy discussion. Hanji, how was that?
देखो देखते देखते मैंने एक स्टेप लिख लिया. इट्स योर टर्न नाउ. करेक्ट. क्या बोले? करेक्ट. वेरी गुड. हम लिखेंगे negation of A implies B is equal to, वेरी गुड, negation of conditional statement. क्या कहते हैं इसको? negation of conditional statement. चलिए, मन ही मन में हम इसे कहेंगे तू A है और तू B है, तो negation of A implies B क्या है? हाँ जी, बताइए. पहला ब्रैकेट एंड नेगेशन ऑफ दूसरा ब्रैकेट. व्हाट इज पहला ब्रैकेट? P और नेगेशन Q एंड दिस इज P एंड नेगेशन Q. सही है कि नहीं है? बराबर है क्या? अब इस नेगेशन को अंदर भेज दीजिएगा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ. दिस इज कॉल्ड एज डी मॉर्गन्स लॉ. So if I'll apply this De Morgan's law here, what is this going to give me there? P or negation Q ANDed with, क्या बात, वेरी गुड. और गलती से मिस्टेक, दिस इज P negation P और Q. You see, और मैंने इसको कहीं देखा है नहीं. दिस इज RHS. पता ही नहीं चला. इज दिस ओके? समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड. कभी कभी हम मंजिल तक पहुंच जाते हैं लेकिन अपने को पता ही नहीं चलता मंजिल आ गई. हाँ, बराबर बोला. करेक्ट. इज दिस ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स प्रोसीड फर्दर नाउ. और देखते ही देखते हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हो गया. गो टू पेज नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 10. पेज नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 10. अरे देवा, ये क्या है? ये तो सेम आ गया रे. अभी अभी खुश हो गए थे. खत्म हो गया इस टाइप का. मिसलेनियस एक्सरसाइज 1, पेज 34, क्वेश्चन नंबर 10. यूजी. हाँ जी. यूजिंग रूल्स इन लॉजिक. यूजिंग रूल्स इन लॉजिक मतलब विदाउट यूजिंग द ट्रूथ टेबल. रूल्स इन लॉजिक बोले तो वह जो टेबल, फॉर्मूले वाला टेबल दिया है ना सारे लॉज का, यूजिंग ऑल द लॉज, प्रूव द फॉलोइंग. प्रूव द फॉलोइंग. लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन. तो ये क्वेश्चन नंबर 10 में का 1. हाँ जी. मैंने एक स्टेप लिखा. योर टर्न. थ्री में का 1 तो नहीं है. 3 में का 1 तो नहीं है. नहीं नहीं नहीं, अलग है. इट्स डिफरेंट यू नो. हाँ जी. चलिए बोलिए कैसे करेंगे. बाय कंडीशनल लॉ अगर यूज करते हैं तो क्या मिलेगा वहां पे? प्लीज टेल.
थोड़ा अलग सोचते हैं. आई मीन कैन आई से इफ आई स्टार्ट विद RHS, क्या मिलेगा यहाँ पर? negation of P and negation Q, और negation of Q and negation P. आई मीन यहां से अगर negation को बाहर निकाले, well let me say that this is A and this is B, and then this is negation A or negation B, which is actually negation of A and B. And is this not De Morgan's law? सही बोले आप लोग, बहुत करेक्ट डिस्कशन चल रहा है आपका, यही बोल रहे हो ना? वेरी गुड, डी मॉर्गन्स लॉ. तो इफ आई टेक दैट आउट, व्हाट इज दिस गोइंग टू गिव मी? मतलब पहला ब्रैकेट एंड मतलब दूसरा ब्रैकेट. यू सी? अच्छा, अब आगे बताइए. P एंड नेगेशन Q, इसको देख के मुझे कुछ याद आ रही है. यू नो व्हाट इज नेगेशन ऑफ P implies Q? Is it not P and negation Q? Oh yeah, and oh yeah, I mean same thing. तो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नेगेशन ऑफ कंडीशनल लॉ. दिस इज कॉल्ड एज नेगेशन ऑफ कंडीशनल लॉ. कर दिया मैंने, इसको अप्लाई किया यहां पे, दोनों जगह पे किया, दोनों जगह पे. तो क्या मिलेगा? दिस इज नेगेशन ऑफ, आप बताओगे प्लीज? थोड़ा थोड़ा मुझे भी एक्सप्लेन करो ना, मतलब क्या लिखूं यहाँ पे, क्या लिखूं? This is negation of P implies Q and negation of Q implies P. You see? You see? एक मिनट. हाँ, ये एंड जाएगा तो और बनेगा ना यहाँ पे. और बनना चाहिए. हम्म. एक सेकेंड, एक सेकेंड. हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन रॉन्ग है. क्वेश्चन इज रॉन्ग. यहाँ पर क्वेश्चन में एंड होना चाहिए, तभी क्वेश्चन का आंसर सही आएगा. प्लीज चेंज द क्वेश्चन. दिस हैज टू बी एंड. प्लीज मेक द चेंज. ये अगर एंड होगा तो यहाँ पे बुक में आपके एंड ही है, तो पहले के मेरे इसमें गलत है, प्रिंटिंग मिस्टेक लास्ट ईयर था. दे हैव चेंज दिस. देयर दिस प्रिंटिंग मिस्टेक वाज देयर लास्ट ईयर. तो कुछ लोगों को लास्ट ईयर का कॉपी अगर मिल गया है तो उसमें चेंजेस नहीं होंगे. चलिए कोई नहीं. यहाँ पर क्या हो जाएगा इन दैट केस? इफ आई अप्लाई दिस, तो ये हो जाएगा और यहाँ पे, मतलब दिस इज एंड दिस विल बी और. ये और होगा, ये एंड होगा. और यहाँ पे भी और ही होगा. इज दैट ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब मुझे बताइए कि अगर मैं ये नेगेशन अंदर भेज दूं तो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉ. आई विल सेंड दिस नेगेशन अंदर की तरफ, क्या मिलेगा? आई विल सेंड दिस इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड व्हाट इज द फर्स्ट ब्रैकेट? सेकेंड ब्रैकेट. लेकिन ये भी मुझे पता है बाय कंडीशनल लॉ, दिस इज
बाय कंडीशनल लॉ बराबर है क्या? सो व्हाट इज दिस गोइंग टू गिव मी? P double implies Q and that is equal to LHS. Is that clear? तो मैंने इस बार RHS से शुरुआत किया, आप वैसे भी कर सकते हो, यू विल गेट दैट. इज दिस ओके? समझ में आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे? समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड. अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे? If you look at the next question, if you look at the next question, this. देखिए इसके पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इसका जो LHS था उसे मुझे ओपन करके बुलाना था. यहाँ पर LHS बड़ा है, RHS छोटा है. LHS बड़ा है, RHS छोटा है. LHS RHS LHS बड़ा है, RHS छोटा है. तो यहाँ पे भी LHS छोटा है, RHS बड़ा है. सो यहाँ पर भी मैं प्रेफर करूंगा RHS से सॉल्व करने का. I'll prefer starting with RHS. So RHS is equal to P or Q and negation P. Your turn. P or and this is and ना. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करेक्ट बोला आपने, सही बोला. जस्ट ओपन दिस, ऐसे और ऐसे. वुड यू आंसर दैट? नहीं, हाँ ना, हाँ नो. ये जब ऐसे ओपन होगा तो दिस इज P एंड नेगेशन P. और ओके, नाम क्या है इसका? ओके, अगला सोचिए. थिंक ऑफ द नेक्स्ट टर्म. हाँ, क्लिक हो गया क्या? दिस इज P एंड नेगेशन P is equal to false. This is complement law. So this is going to give me what? This is false or Q and negation P. Now this is going to give me something. P or false. P can be true. True or false is true, and P can be false. False or false is false. So is this P and is this identity law? It's retaining its identity. So is this identity law? सही बोला? तो क्या लिखूं यहाँ पे? That is equal to Q and negation P. Q and negation P. अगर आप ऑर्डर चेंज कर रहे हो तो बिना बताए ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते, वहां पे लिखना पड़ेगा कॉम्यूटेटिव लॉ. तो लिखो, कौन सा लॉ रह गया अभी? कॉम्यूटेटिव लॉ. And with the help of this commutative law, this is going to become negation P and Q, and that is equal to LHS. Is this okay? Is this okay? Agla question, the next one. So today basically we are seeing all the questions which are based on the table, right? And they are not easy, by the way, let me tell you. हाँ जी, बताइए कैसे करेंगे? करेक्ट, LHS से शुरू करना है. सही बोला आप लोगों ने, वही बोला ना आपने मन ही मन में. आपके मन की बात मुझे सुनाई देती है. नेगेशन P एंड Q. एंड करेक्ट, RHS में Q नहीं है. Q को खाया गया है, एब्सॉर्ब किया गया है. एब्सॉर्प्शन लॉ कहीं पे यूज होगा यहाँ पे जी, शायद उससे रिलेटेड और कुछ. चलिए बताइए कैसे करेंगे?
ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज डी मॉर्गन्स लॉ फॉर द सेकेंड ब्रैकेट, बराबर है ना? यस मत बोलो, नो। हाँ, कुछ भी बोलो, हाँ नहीं बोलने का। ध्यान से देखो ना, सुनो क्या बोल रहे हैं। सो डी मॉर्गन्स लॉ फॉर द फर्स्ट ब्रैकेट, डी मॉर्गन्स लॉ फॉर द फर्स्ट ब्रैकेट, आगे बताइए। वेरी गुड। और नेगेशन पी एंड क्यू। हाँ जी, नहीं, सही बोला, नेगेशन पी कॉमन ले लो। कॉमन लेने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इफ आई टेक दिस नेगेशन पी हियर and I'll AND it with negation Q और Q, जरा ओपन कीजिएगा इसको, इंग्लिश में क्या बोलोगे आप लोग? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लो, इज दिस ओके? ये समझा ना रे? ओ ये, दिस इज ओ ये ना? व्हाट इज P और नेगेशन P? फॉल्स। कंप्लीमेंट लॉ ना, व्हाट नेगेशन? ऐसा लॉ है कि नहीं है? यू मीन टू से कि पहले मैं कॉमिट करूं? नहीं, मैंने ये कर लिया। इज दिस ओके? तो क्या लिखूं जी यहां पे मैं? नेगेशन P और फॉल्स एंड फॉल्स, है ना? नेगेशन P एंड फॉल्स। नाउ P एंड फॉल्स, अगर P ट्रू है, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, P एंड नेगेशन Q, और इसको भी चेंज किया क्या? Q और एक सेकेंड, P और नेगेशन P इज ट्रू ना रे? फॉल्स आएगा या ट्रू आएगा? प्लीज चेक दिस टेबल। या इट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ, P और नेगेशन P इज ट्रू। मैंने फॉल्स लिखा वहां पे, इट हैज टू बी ट्रू देयर, इट हैज टू बी ट्रू। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, तो यहां पर भी ट्रू आएगा। तो देयर हैज टू बी ट्रू, ट्रू, ट्रू। हाँ जी, P एंड ट्रू, P एंड ट्रू इज P, दिस इज आइडेंटिटी लॉ। इज दिस ओके? And that is equal to negation P, and that is equal to RHS. Any doubts? Any doubts? Is this very clear to you all? Super. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now we come for the last part of this chapter now, because there is only one exercise left now. अभी हम बत्तियां जलाएंगे। So please go to page number 21. Please go to page number 21. Application of logic to switching circuits. Application of logic to switching circuits. Okay, application of logic to switching circuits. आपका एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं अभी। ये एक डायग्राम है, a simple diagram I have considered here, and then one more.
This is one more diagram. Well, I'm considering these two simple diagrams. ये बत्ती जलाने वाला डायग्राम है दिमाग की. Here we consider two diagrams, two circuit diagrams in short. We call them as circuit diagrams. These are the two switches, S1, S2. This is a battery and this is a lamp. L is a lamp. ठीक है. अब इसके ट्रुथ वैल्यूज की अगर मैं बात करूं तो लेट मी से कि ये जो स्विच S1 है इसे मैं P बोलूंगा. स्विच S1 एंड Q बोलूंगा स्विच S2. ठीक है, isn't it? एंड यहां पर स्विच S1 अगर क्लोज्ड हो जाता है, स्विच S1, ये लाइट कब जलेगा ये बताइए मुझे. नाउ हियर एक ट्रुथ टेबल की तैयारी कर लेता हूं मैं. आई नीड नंबर ऑफ कॉलम्स 3, नंबर ऑफ रोज 5. तो एक टेबल ले लिया मैंने यहां पे. ठीक है, प्लीज कंसिडर दिस. दिस इज P एंड Q. अगर स्विच S1 क्लोज होता है, इफ दिस इज क्लोज्ड, तो P का वैल्यू इज इक्वल टू 1 एंड इफ इट इज ओपन तो P का वैल्यू इज इक्वल टू 0. समझ में आ गया. उसी तरह से अगर स्विच S2 क्लोज होता है तो P का वैल्यू इज इक्वल टू 1, सॉरी Q का वैल्यू, एंड इफ इट इज ओपन दैट मीन्स Q इज इक्वल टू 0. समझ में आ गया. और यहां पर लैंप लिखूंगा मैं, लैंप. ये लैंप का आउटपुट क्या होगा? कंफ्यूज है? हाँ, आई विल एक्सप्लेन दिस वंस अगेन. वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, मैं आपको बता रहा हूं. देखिए, अगर इसको मैंने चालू किया, तो P का वैल्यू क्या आएगा? दिस इज P एंड दिस इज Q. ठीक है, तो P का वैल्यू आएगा 0, सॉरी P का वैल्यू आएगा 1, है ना. P का वैल्यू आएगा 1 और इसका वैल्यू आएगा 0. समझे? करेक्ट. दूसरा तरीका, अगर मैं इसे क्लोज कर दूं और इसको ओपन कर दूं तो दिस इज 0 एंड दिस इज 1. सही है. तीसरा, तो थर्ड वन, अगर मैं दोनों को भी क्लोज कर दूं, इफ आई क्लोज बोथ, तो ये आएगा 1 और ये आएगा 1. इज दिस ओके? हेलो, सही है. और अगर दोनों को ओपन रखूं तो, दोनों को अगर ओपन रख लूं तो बोथ द वैल्यूज आर 0. सही है. सही है ना? एनी डाउट्स अबाउट दैट? तो वही मुझे बताना है, आप लोग मुझे बताओगे. चलिए, तो अगर पहले केस में दोनों को भी मैं क्लोज कर देता हूं तो क्या बनेगा? दोनों को मैंने क्लोज किया. द फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज बोथ आर क्लोज्ड. ये, तो टेल मी द ट्रूथ वैल्यूज हियर. ये 1 1 आएगा, इजंट इट? अरे लैम्प जलेगा कि नहीं उस वजह से? अच्छा, ये अगर सर्किट पूरा हो रहा है तो विल द लैम्प ग्लो? लैम्प विल ग्लो. हाँ, तो लैम्प अगर जल जाता है, लैम्प इज ऑन, तो L इज इक्वल टू 1 एंड लैम्प अगर ऑफ है तो L इज इक्वल टू 0. समझ में आ गया? इज दिस क्लियर? चलिए बताइए मुझे फिर क्या होगा. लैम्प जलेगा अभी?
तो 1, वेरी गुड, वेरी गुड। अब दूसरा केस कंसिडर करते हैं, कौन सा वाला? अब हम केस कंसिडर कर रहे हैं भाई, ये जो है इसको मैंने ऑन किया लेकिन ये ऑफ है, तो ट्रुथ वैल्यू बताइए क्या होगा? 1 एंड 0, लेकिन ये 0 आएगा, करेक्ट है? अगेन आई विल मेक अ चेंज हियर, अगेन आई एम मेकिंग अ चेंज हियर। अब के बार मैं इसे क्लोज कर रहा हूं, तो इट इज 0 1, यस और नो? इट इज 0 1, बट दिस इज 0, राइट? एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट, कि भाई दोनों को भी मैंने ओपन रख दिया, यहाँ पे दोनों को भी ओपन रख दिया मैंने, तो क्या आएगा फिर? 0 0 0, लाइट नहीं चलेगा ना? इज दिस क्लियर टू ऑल? ओके, नाउ दिस is similar to, this is very much similar to true true true, true false false, false true false, and false false false. So I think this is P Q P and Q. So this is actually the logical AND gate. Yeah, this is the electrical circuit. This electrical circuit is similar to AND. तो इसे AND circuit भी कहा जाता है. This is also called as AND circuit. Is this okay? क्योंकि इस लैम्प को जलने के लिए S1 और S2 दोनों एंड S1 एंड S2 दोनों चलने चाहिए. जब दोनों ऑन होंगे तभी ये लैम्प जलेगा, नहीं तो ये लैम्प नहीं जलेगा. Is this okay? Whereas this is called as OR circuit. Why? क्योंकि S1 और S2 दोनों में से जो भी स्विच ऑन होगा बत्ती जलेगी. Is this clear to all? So likewise, can you tell me now this table, इसके ये वाला जो टेबल हम इसको ट्रुथ टेबल कहते हैं. ट्रुथ टेबल में क्या होता है जी? ट्रू और फॉल्स होता है. लेकिन इस टेबल को हम कहते हैं इनपुट आउटपुट टेबल. इसे क्या कहते हैं हम? इनपुट आउटपुट टेबल. It is similar to the truth table. T is replaced by 1 and F is replaced by 0. Is that clear? T is replaced by 1 and F is replaced by 0. तो अब आप लोग मुझे इनपुट आउटपुट टेबल बताएंगे और सर्किट का. और सर्किट का इनपुट आउटपुट टेबल आप प्लीज बताइए मुझे. सेम वे हियर I'll have a table here. Yes, this is P and this is Q, और ये होगा P और Q. ठीक है, I'll call this as input output table. इनपुट आउटपुट टेबल क्या आएगा? 1 1, दोनों चालू किया तो बल्ब जल गया. 1 0 1, 0 1 1, 0 0 0. Is this clear to all? Any doubts about that? समझ में आ गया सबको? This is the input output table for OR circuit. Is that clear? ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस अभी हम सॉल्व करेंगे. सो प्लीज गो टू पेज नंबर 29. पेज नंबर 29. पता नहीं यहाँ पे लिखा है कि नहीं, लेकिन मेरे बुक में तो यहाँ पे नहीं लिखा था कि ये है एक्सरसाइज 1.5. आप लोगों में शायद लिखा होगा एक्सरसाइज 1.5, यहाँ से शुरू हो रहा है. ओके, चलिए शुरू करते हैं. अच्छा, बाय द वे, इसमें से मैं कौन से सॉल्व करूंगा? इसमें से आई विल बी सॉल्विंग थर्ड,
4th, 5th एंड 6th। तो ये दोनों आपके लिए होमवर्क होंगे, प्लीज मार्क कर लीजिएगा। दीज आर द होमवर्क्स फॉर यू। Now this is exercise 1.5. Express the following circuits in the symbolic form of logic and write input output table। इसका हमें input output table भी लिखना है। Let's begin. Let's begin. So I'll go for the third one first. ये रहा। We have to write down the table for this। इसके लिए हमें टेबल लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू द सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक लॉजिक फॉर्म में मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। वेल हाउ इज दैट, कैसे करेंगे बताइए। अब देखिए S1 जहां पर है उसे मैं P बोलूंगा। मतलब व्हाट आई विल से हियर कि भाई लेट P is the statement where switch S1 is closed, जिसे मैं P बोलूंगा। तो जहां S2 है या S3 है, तीन स्विचेस है ना यहां पे, तो Q is the statement when switch S2 is closed. R is the statement where switch S3 is closed। लेकिन यहां पर S2 और S3 है ही नहीं। हाँ डैश है वहां पे। नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डैश, लेट मी टेल यू। तो इसका मतलब है नेगेशन P is the statement where switch S1 dash is closed। Negation Q is the statement where switch S2 dash is closed। Negation R is the statement where switch S3 dash is closed। Is this clear to you all? Is this okay? समझ में आ गया क्या? Isn't it? So S1 dash, S2 dash, S3 dash। अब यहां पे जो हमको दिया गया है उसका मुझे लॉजिकल फॉर्म लिखना है। एंड मतलब सीरीज, एंड मतलब सीरीज, और मतलब प्यारे लाल। राइट, सो लेट्स बिगिन नाउ। अब इसको देख के आप बताइए मुझे क्या है। सो हाउ डू वी राइट दिस? दिस इज नेगेशन Q, दिस इज नेगेशन Q और नेगेशन R, और ये सीरीज में है P के एंड, और ये सब का सब पैरेलल में है इसके negation Q and negation R, and that's it। Did you understand this? Once again check here, please try to answer। जब मैं पूछ रहा हूं तो आपको वो फिर दिमाग में आपका एक्सरसाइज हो जाएगा। एंड मतलब सीरीज, और मतलब पहला देखिए यहां पे। अब सी द फर्स्ट थिंग हियर, ये दोनों पैरेलल में है तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा? और लिखेंगे। और ऑफ व्हाट? S2 डैश।
negation q, and S3 dash. This is S3 or S3 dash? अच्छा, दैट इज S3, तो S3 के लिए क्या लिखेंगे? R. सही है. नाउ दिस इज इन सीरीज विद दिस, इसके साथ वो सीरीज में है, तो दैट हैज टू बी एंडेड, एंड P. सही है. ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा जो है वो पैरेलल में है इसके. सो और किसके पैरेलल में है? इन दोनों का सीरीज. S2 डैश negation q and negation r is the answer. Understood? Is that clear? Sure. चलिए बढ़िया. अगला वाला बताइए मुझे. टेल मी द नेक्स्ट वन. सो दिस इज, अब मुझे इसका इनपुट आउटपुट टेबल भी तैयार करना है. I have to prepare the input output table for this, just like the truth table, isn't it? So input output table के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? क्या क्या मुझे टेबल के कॉलम्स होंगे बताइए? P, Q, R, फिर नेगेशन Q एंड नेगेशन R, फिर नेगेशन Q और R, फिर नेगेशन Q एंड नेगेशन R. समझ में आ रहा है क्या? फिर P एंड दिस थिंग, P इज एंडेड विद दिस. समझे क्या? P and negation Q or R, and last is P and negation Q or R is ORed with, is ORed with negation Q and negation R. Is that understood? समझ में आ गया क्या? तो इतने सारे इस टेबल के कॉलम्स होंगे. These are all the columns of this table. ये है इस टेबल के सारे कॉलम्स. समझे? Isn't it? तो टोटल कितने? 3, 6, 9 कॉलम्स. एंड रोज कितने होंगे यहाँ पे? हाउ मेनी रोज? 9 रोज, क्योंकि 4 बार टी और 4 बार फॉल्स और पी और क्यू का एक, तो टोटल 9 रोज. ठीक है. अब मुझे तीसरा नहीं चौथा कॉलम थोड़ा सा ज्यादा वाइड चाहिए. ये भी ज्यादा वाइड चाहिए. ये उससे भी ज्यादा वाइड चाहिए. लेट्स बिगिन नाउ. ये देखिए, ये रहा टेबल आपका. सो लेट मी राइट हियर नाउ. दिस इज P, Q, R, negation Q, negation R, negation Q or R, negation Q and negation R, P and negation Q और R. और ये जो है ये सबसे बड़ा वाला होगा एक्चुअली. सो दिस इज P and negation Q और R, और negation Q
and negation R. Is this okay? ये ट्रुथ टेबल नहीं है. This is input output table. This is input output table. आपके सामने इनपुट आउटपुट टेबल एंड और का सामने रखिए. अब यहां से मुझे क्या लिखना पड़ेगा? व्हाट शुड आई स्टार्ट इट विथ? 4 बार 1, 4 बार 0, 1 1 0 0 1 1 0 0. Would you like to answer, everybody? Say it. 1 0. Negation Q. Negation R. Negation Q और R. और कब होता है? 1 1 1 बाकी सब 0. और क्या होता है? 1 1 1 बाकी सॉरी 0 0 0 बाकी सब 1. 0 0 और है ये. दिस इज और. 0 0 0 बाकी सब 1. एंड क्या होता है? 1 1 1 बाकी सब 0. We want OR. We want ORing of Q and R. So 0 0 0 बाकी सब 1. So this is 1 0 1 1 1 0 1 1. Stop discussions. Are you understanding? Please answer. जब मैं लिख रहा हूं तो मैं चाहता हूं आप लोग आंसर करें ताकि आपका नहीं नहीं सर सही बोल रहे वो लिख लेंगे. डोंट डू दैट. आंसर इट. अगला वाला. आई वॉन्ट द एंडिंग ऑफ नेगेशन क्यू एंड नेगेशन आर. इन दोनों का एंडिंग चाहिए. एंड क्या होता है? 1 1 1 बाकी सब 0. सो दिस इज 0 0 0 1 0 1 0 0 0 and 1. All right. Please process it through your head. अब मुझे चाहिए एंडिंग. What is to be ANDed? P is to be ANDed with this. बताइए. एंड 1 1 1 बाकी सब 0. 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0. Is this okay? Is that okay? Doubts there? Is this okay? Last. अब मुझे चाहिए ORing of these two. इन दोनों का ORing चाहिए. ORing क्या होता है? 0 0 0 बाकी सब 1. 0 0 0 बाकी सब 1. तो दिस इज 0 0 0 1 0 0 0 1. Is this okay? Any doubts about that? Is that clear? पीछे का आंसर चेक कर लो एक बार. गड़बड़ लग रहा है. एक मिनट. लेट मी करेक्ट दिस. गड़बड़ क्या हो गया है? मुझे किसका और किसका चाहिए? P और ये इन दोनों का एंडिंग करना था मुझे. तभी मैं सोच रहा हूँ गड़बड़ क्या हो गया. हाँ. एंडिंग क्या होता है? 1 1 1 बाकी सब 0. सो दिस इज 0 0 0 1. अरे दोबारा वही कर रहा हूँ मैं. आई एम डूइंग द सेम थिंग अगेन. 1 1 1. दिस इज 0 1 1 0 0 0 and 0.
and now ORing of these two I want. ORing में क्या होता है 0 0 0 बाकी सब 1, so this is 1 0 1 1 0 0 0 1, so 1 0 1 1 0. Yeah, that's the answer. Is this okay? I think we'll stop here today.